A very warm good afternoon to one and all present here. I, Dr. Bhavna Agrawal, on behalf of Rabindranath Tagore University, welcome you all to this webinar on World Water Day, organized by Center of Science Communication and Faculty of Science. My heartily welcome to Honorable Keynote Speaker, Dr. Vinod Kumar Parshar, Senior Professor of Geology in MBM College. It gives me great pleasure to extend a warm welcome to Director, Center of Science Communication, Mr. Pravar Roy, Dean of Science, Dr. Neetu Paliwal, HOD of Physical and Life Science Department, all faculty members, and my dear students. Now I would like to request Mr. Pravar Roy, sir, Director, Center of Science Communication, for the welcome speech. Over to you, sir. Well, good afternoon to all of you. Yes, Thank you, Bhavna Madam. I will rather speak in mixed language, that is Hindi as well as English, because I think most of our students belongs to that North Indian sides. So for them, it will be easier to follow Hindi. So better to use a mixed language. आप सब जानते हैं 22 मार्च हर साल में हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं एंड इस साल भी हम रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साइंस कम्युनिकेशंस एंड फैकल्टी ऑफ साइंस ये दो डिपार्टमेंट द्वारा जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोग्राम हम कर रहे हैं और इस साल हमारे ऑनरेबल स्पीकर है डॉक्टर विनोद पाराशर सर। उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन और बायोडाटा आई विल रिक्वेस्ट भावना मैडम टू लेटर ऑन स्पीक, बट बिफोर दैट मैं सोचा कि सेंटर फॉर साइंस कम्युनिकेशंस के बारे में दो शब्दों कहना यहाँ पे उचित रहेगा और वाटर डे एंड इट्स मैनेजमेंट इनके बारे में तो सर बताएंगे बाद में। तो सेंटर फॉर साइंस कम्युनिकेशंस इज ए यूनिट, इट्स ए स्मॉल यूनिट इन रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत सारे एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज द्वारा साइंस को पॉपुलराइज कर रहे हैं एंड नॉट ओनली दैट it has so many objectives. So to tell few of them, like to generalize and to generate the interest and facilitate the development of scientific knowledges and perspectives among the students as well as faculties. So various activities. That activities may be seminars, exhibitions, demonstrations, etc., etc. This is one. And second thing, organization of various visits to different scientific institutions like science centers or Indian science institutes, RRLs, EMPRI, and there are some other institutes under ICR in Bhopal also. Just to generate the scientific interest, just the practice of laboratories and general interest in the science, and to attract the best mind towards the science to pursue higher education in science. So all these things are the basic objectives for our center. Apart from that, there are some other objectives like to generate a scientific temper in the students through debates, through film shows, and through different expert lectures. Not only that, through this Center for Science Communications, we are publishing one science magazine like this. It's a very popular magazine that is electronic की आपके लिए एक हिंदी में मैगजीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंटिफिक अवेयरनेसेस, करंट टॉपिक्स ऑफ साइंस, ये सारे चीज के ऊपर में बहुत सारे अच्छा सुंदर और अच्छे मतलब राइटर्स द्वारा पूरी ये हर महीना में पब्लिश होता है एंड I think it has been 33 years from now this magazine has been publishing, and today's publications is around 35,000 to 40,000. So आप समझ सकते हैं कितने पॉपुलर है. So for your knowledge, I will just mention all these things, and with these few words, I should request Bhavna madam to say or introduce our honorable speaker. But जहाँ तक मेरा knowledge है, and he has been, I must mention it here, that he has been
very good and old friend of ours for mine. He has been connected and associated with me and our science center for years together. फराज सर आपको भी याद रहेंगे कि हम मेरे ख्याल से 2003 से शुरू किया था और ये मेरा आज याद आ रहा है. I must mention it here that when I came to Bhopal from Bombay, I think in the year 2003 or back during that time there was no Indian Science Congress Associations का chapter भोपाल में नहीं थे. तो it is Dr. Parag sir who has in fact introduced this and who has established Science Congress Associations Bhopal chapter. And so far as my knowledge goes, who was the first convener of that prestigious organizations. And not only that, he has been connected with different aspects, different activities other than his normal teachings. So I will request Dr. Bhavna Agrawal ma'am to introduce. And here I must mention that Dr. Bhavna Agrawal madam जो है ये पूरी प्रोग्राम की संचालन सुचारू रूप से करेंगे. हमारे सूत्रधार आप ही रहेंगे. तो मैडम आप प्लीज सर का इंट्रोड्यूस करें, इसके बाद में सर का लेक्चर शुरू हो जाए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. ओके, थैंक यू सो मच सर. Save water and it will save you. Water World Day is held annually on 22nd March as a mean of focusing attention on the importance of fresh water and advocating for the sustainable management of freshwater resources. Moreover, this day is used to highlight the necessary improvement for accessing water, hygiene facilities, and sanitation in all countries. With this, Dr. Vinod Kumar Parshar is presently working as Senior Professor of Geology in MVM College, former in charge principal several times in Government MVM College, Bhopal. He is having 38 years of UG and PG teaching as well as nutrition experience. His research of interest and area of specialization is in hydrogeology, water pollution studies, water management. 4 research scholars have been awarded and 2 are research registered under his supervision. He has published 20 research papers on water quality and various reputed journals and written 2 informative books on water. Dr. Vinod Parashar was also as a research evaluator of 3 distinguished universities. He is life member of 10 Indian scientific organizations. He has successfully carried out various UGC major and minor research projects of Narmada Valley between Hoshangabad and Handia district, Sihor and Hoshangabad. He has organized around 60 conferences, seminars, workshops on water and environment, also delivered 100 motivational and awareness lectures at various schools, colleges, and different institutes on water management, conservation and management of water resources, traditional methods of water conservation, etc. Dr. Vinod Parshar has been honored with many awards, especially Jal Star Award by Dainik Bhaskar Group. Along with such achievements, he is presently Senior Vice President, MP Kalyani and Canyoning Association. Apart from this, in past he was Associate NCC Officer, NCC Naval Wing. Last rank was Lieutenant Commander, NCC Navy, Nausainik Camp, RDC Camp, etc. Former convener, the Indian Science Congress Association, Bhopal. Now, I would like to request Dr. Vinod Kumar Parshar for the speech. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Bhavna ji. Okay, sir. प्रबल राय साहब, नीतू पब्लिक स्कूल, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं. मैं थोड़ा मेरा गला आज खराब है, रात से परेशान हो रहा हूं, पर भी ये जो प्री ऑक्युपाइड प्रोग्राम था उसको मैं करना चाहूंगा. Otherwise, I am not in position to deliver a lecture. But anyhow, I will try my best to actually मैसेज जो मुझे देना है आज के दिन वो सभी को मैं दे सकूं. मैं शेयर करता हूं अपनी स्लाइड्स को.
ये सब दिखाई दे रहा है, शेयर हो गया? टेबल सर फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज, अच्छा, साइड राइट कॉर्नर, या Yes. यस आ सर, गया? हाँ यस यस सर, नाउ इट इज ओके। ठीक है सर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वाटर मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर। जैसे आपको मालूम है कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है। और इस हाइड्रोस्फीयर को यदि हम ध्यान से देखें तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले 2018 में दक्षिण अफ्रीका में एक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि डे जीरो केपटाउन के अंदर हुआ था, जब पानी की राशनिंग हुई थी। उसके बाद में एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये कहा गया कि 10 ऐसे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड के अंदर 10 शहर ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी हो जाएगी। उसमें बेंगलोर हमारा इंडिया का भी नाम है उसका। एक और फर्दर यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स की रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि आगरा, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, इवन भोपाल ऑल्सो, दिल्ली, इंदौर, ये सब एक्सट्रीम से लेकर हाई रिस्क पर आएंगे वाटर स्ट्रेस में। क्योंकि कारण ये है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है और इस कारण से पानी की कमी हो रही है। मैं अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि हम कैसे पानी को मैनेज करना चाहेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2020 अभी तो निकल गया, पर भी 21 ऐसे मेजर शहर हैं इंडिया के जहां पर जीरो होगा, मतलब पानी की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कि चेन्नई का उदाहरण। आज आपने अखबार में इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज वहां पर है, पर उसके बाद भी सबसे ज्यादा पानी का संकट चेन्नई में है। तो ये रिपोर्ट हमारी आंखें खोलती है कि आने वाले समय में हमको पानी का संकट जो बढ़ रहा है उसको कैसे दूर किया जाए। जैसे चेन्नई की पोजीशन मैंने आपको बताई, चेन्नई की पोजीशन में ये है कि 4 वाटर बॉडीज हैं, 3 नदियां हैं, 5 वेटलैंड हैं और 6 फॉरेस्ट है। मतलब इतना चेन्नई के अंदर इतना पानी है, इतने तालाब हैं और इतनी वाटर बॉडीज हैं, उसके बाद भी वहां पर पानी की शिकायत और पानी का संकट आ रहा है। ये माना जाता है कि आप कई बिना खाने के कई महीने तक रह सकते हैं, मतलब फॉर मोर देन अ मंथ यू कैन सर्वाइव बट यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मतलब एक हफ्ते भी बहुत होता है, 2-3 दिन के बाद ही यदि आपको पानी नहीं मिलता तो आप खत्म हो जाते हैं। और ये भी आपने देखा होगा कई एनिमल्स, जिसमें एक जेली फिश है जिसके अंदर 90% पानी उसकी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 60% पानी है, जो ब्रेन के अंदर 85% वाटर है। उसके बाद में हमारे ब्लड में 79%, लंग्स के अंदर 80% पानी है। तो पानी का मोल बहुत है और पानी कहाँ कहाँ है ये अभी आपको, तो हम वाटर मैनेजमेंट की आज बात करेंगे, हम बाकी नहीं जाते। तो वाटर मैनेजमेंट क्या है? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इस एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो इस आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कितने वाटर रिसोर्सेस हैं, पानी का उपयोग क्या क्या है, हम ग्लोबली पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे नेशन में कितनी है, हमारी कंट्री में कितनी है, और वाटर साइंस, वाटर सोसाइटी उसके लिए क्या कर सकती है। यदि आप ग्लोबल वाटर बजट को देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1.37 into 10⁻⁸ इतना मिलियन हेक्टर मीटर पानी हमारे पास है वर्ल्ड वाटर में, पर 97.2% पानी जो है वो ओशन में है, दैट इज सेलाइन वाटर। 2.8 इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। सो आउट ऑफ दिस 2.8 जो है उसमें 2.2 जो है वो सरफेस वाटर है। 2.2 के अंदर 2.15 यदि हम ध्यान से देखें तो दिस इज अवेलेबल एज ग्लेशियर। यदि आप ऊपर से देखेंगे तो 99.17% पानी जो है हमारे किसी काम का नहीं है।
और 0.01% पानी जो है वो लेक्स और रिजर्वायर्स में है। 0.04% पानी स्ट्रीम्स, एटमॉस्फेयर, सॉइल मॉइस्चर में, और 0.60% पानी ग्राउंड वाटर में। तो यदि अवेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पानी ओशन के बाद ग्लेशियर्स में है, वो ग्लेशियर के बाद में ग्राउंड वाटर में है। तो हमको ग्राउंड वाटर जो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है उसको बचाने की आवश्यकता है। और यदि पूरे पानी की बात करें तो जो कुछ रोल होता है वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल का होता है। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसके बाद में जो सी है, ओशन है, वहीं से एवोपरेशन होता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने के बाद में उनमें कंडेंसेशन होता है, और उसके बाद में पूरे का पूरा प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के रूप में या फिर स्नोफॉल के रूप में अर्थ सरफेस पे वापस आता है। तो जब रॉक्स पे टकराता है, सॉइल पे टकराता है, वो इन्फिल्ट्रेशन होकर नीचे जमीन पे जाता है, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। अदरवाइज जो पानी एक्सेस हो जाता है वो सरफेस पे चला जाता है, और अल्टीमेटली रिवर्स में होने के बाद में वो आखिरी में फिर ओशंस में चला जाता है। तो जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, सरफेस वाटर रिसोर्सेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। तो समुद्र, महासागर, नदियां, लेक्स, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिजर्वायर्स, ग्लेशियर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, देयर आर सो मेनी वाटर बॉडीज जो कि सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के रूप में हो सकती है। तो जैसे आपने अभी हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखा, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन एंड द सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। The important facts: the population of the world is around 6 billion and it is expected to exceed 8 billion by the year 2050. और अभी आज की तारीख में यदि हम देखें तो हम लोग 130 करोड़ हैं, और 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ या 160 करोड़ के आसपास होगी। यदि आप ये सब चीजें देखते हैं, पॉपुलेशन जो इंडिया की बढ़ रही है उसका 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हमारा हिस्सा है, और 2.45% में वर्ल्ड के लैंड रिसोर्सेस हमारे पास है, और 4% वर्ल्ड का वाटर रिसोर्सेस हमारे पास है। ये कुछ आंकड़े हैं, और ये आंकड़ा और भी ये कहता है कि 2025 तक हमको जो कि पॉपुलेशन हमारी रेट होगी, उस पॉपुलेशन रेट पर हमको लगभग 1341 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। मतलब 140 के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 2025 में, तो हमको उस समय 1341 क्यूबिक मीटर पानी प्रतिवर्ष चाहिए। और 2050 में यदि हम देखेंगे, जब हमारी पॉपुलेशन 160 के आसपास होगी तो हमको 1140 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है। पानी का उपयोग कहाँ होता है? सबसे ज्यादा 80% पानी जो होता है सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर, वो एग्रीकल्चर में होता है। उसके बाद नंबर आता है इंडस्ट्रीज में, डोमेस्टिक उसके बाद आता है, और उसके बाद में एनर्जी, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे बिजली मिलती है, उसमें भी पानी का उपयोग होता है। उसके बाद में छोटे छोटे रिक्रिएशन, होटल बिजनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पानी का यूज होता है। और यदि हम पर डे पानी की रिक्वायरमेंट देखें जो एक आदमी को होना चाहिए, वो लगभग 135 लीटर पानी हमको पर डे चाहिए एक आदमी के लिए, जिसके अंदर वो ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, बाकी जो दैनिक कार्य है उसके लिए 135 लीटर पानी चाहिए। और ये माना जाता है कि स्टडी बोलती है कि यदि जहाँ कुछ पानी नहीं मिले, वहां 20 से 40 लीटर पानी प्रतिदिन यदि किसी को मिलता है तो वो अपने काम कर सकते हैं। मतलब 135 लीटर पानी यदि नहीं मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहां तो वो यूज हो रहा है, पर यदि जहाँ बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है वहां पर 40 लीटर पानी सफिशिएंट होगा आदमी को सरवाइव करने के लिए। और अभी कोविड के समय जब गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है कि हमको कई बार हाथ धोने हैं, और हम यदि 4-5 बार हाथ धोते हैं, और यदि हमारे फैमिली में 4 लोग हैं, तो आप मान के चलिए कि 40 लीटर पानी हमारा रोज इस कोविड के समय में यूज हो रहा है। तो ये आने वाले समय में हम इसको, जब हमारा कोविड खत्म हो जाएगा तो ये शायद
हम इतना पानी फिर बचा पाएंगे, पर अभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं कि रूरल पॉपुलेशन के में ये 40 लीटर पानी रोज उनको दिया जाए, तो ये पानी वहां डाइवर्ट हो जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी एनुअल रेनफॉल। हमारी एनुअल रेनफॉल जो है वो अनइवन है, अनसर्टेन है। और यदि आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देखें तो आप यदि चेरापूंजी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बारिश होती है उस इलाके में, और यदि हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको 200 मिलीमीटर बारिश होती है, चेरापूंजी में 10,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। और यदि आप नॉर्थ से देखेंगे, नॉर्थ में स्नोफॉल होता है इसलिए बारिश वहां पर कम होती है, और नीचे साउथ में जाके अलग अलग कोस्टल रीजन में बारिश अलग है। कहने का मतलब ये कि अनइवन पैटर्न है रेनफॉल का। और दूसरी बात है कि हम टॉप 6 कंट्रीज में है वर्ल्ड की जहां अच्छा पानी मिलता है, पर ये बात है कि हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते। यदि हम पानी को मैनेज प्रॉपर कर लें तो आने वाले समय में हम कोई भी संकट, कोई भी वाटर स्कैर्सिटी हमारे देश में नहीं हो सकती। और सिर्फ 100 आवर्स का पानी बारिश होती है हमारे देश में, और वो भी स्ट्रॉर्म के साथ होती है, मूसलाधार होती है। जो पानी जमीन में नहीं जा पाता वो सिर्फ स्लोप में बाहर निकल आता है, मतलब 70% पानी हमारा रन ऑफ हो जाता है। एक और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि 370 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी हमारे रेनफॉल में है पूरी इंटायर कंट्री में। उसमें से 123 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी ये एवोपरेट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। 167 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी रन ऑफ में चला जाता है। रन ऑफ मीन्स बाहर निकल आता है, जमीन के अंदर नहीं जा पाता। सिर्फ 80% मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो सब सॉइल में जाता है, और 43 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी सॉइल मॉइस्चर में चला जाता है। वो 37 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी अल्टीमेटली आखिरी में ग्राउंड वाटर में जाता है। मतलब 370 का ओनली 10% मान लीजिए जो कि ग्राउंड वाटर बनता है, अदरवाइज पानी जो है एवोपरेशन में या रन ऑफ में बाहर हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मानसून इज वेरी ब्रीफ, वी गेट अबाउट 100 आवर्स ऑफ रेन। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो ग्लोबली 80% ऑफ वेस्ट वाटर जो हम जनरेट करते हैं अपनी सोसाइटी से, इट फ्लोज बैक इनटू द एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग ट्रीटेड और रीयूज्ड। ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री की नहीं, कई जगह की है, पर बाकी शहरों में जहाँ बाकी कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो वहां पर वो एसटीपीज वगैरह बने हैं। हमारी कंट्री में भी एसटीपीज बनना शुरू हुए हैं, और अभी इतने पूरे तरह से नहीं बन पाए हैं कि हम पूरा का पानी जो है वो ट्रीटमेंट के साथ बाहर निकाल दें। 35 to 40 बिलियन टन ऑफ टॉप सॉइल जो हर साल जो होते हैं वो हमारी टॉप सॉइल जो होती है वो बेकार हो जाती है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो जो उसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उससे एक तरह का पॉल्यूशन भी हो सकता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म होती है। 1.8 बिलियन पीपल दे आर अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन, मतलब डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ट्री प्लांटेशन हम कम करते हैं। तो बिना ट्री प्लांटेशन के और ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, वो जगह जो होती है वो डिग्रेड हो रही है। एटलीस्ट 45% ऑफ इंडियन लैंड इज इन ए डिग्रेडेड स्टेट। ये सब आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से। 30 to 40% वाटर इट इज वेस्टेड इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज। यदि हम देखते हैं ना, जो म्युनिसिपल एरिया का जहाँ से पानी सप्लाई होता है, उसमें से 30 से 40% पानी जो है वेस्ट हो जाता है लीकेज के कारण। 80% जो पानी है वो हमारे ड्रेन में चला जाता है सीवर के रूप में, और 70% पानी जो होता है जब रेनफॉल होती है, जब बारिश आती है, उस समय वो रन ऑफ की तरफ वेस्ट हो जाती है। तो आप यदि देखेंगे तो 30 से 40% पानी जो है वो अर्बन सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा लीकेज में, 80% पानी जो होता है वो हमारे सीवर के रूप में जाएगा वेस्ट वाटर, और 70% पानी जो कि
रन ऑफ के रोड से कितना पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। अब इन सब पानी को यदि हम रीयूज करें, रिसाइकिल करें, तो आने वाले समय में हम पानी को मैनेज कर सकते हैं। और ये कई लोगों ने बताया है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी पर ही होगा। अभी भी ऐसा झगड़े होते रहते हैं, 2 कंट्री के झगड़े होते हैं, 2 स्टेट के झगड़े होते हैं, और कभी कभी मोहल्लों के अंदर भी पानी के पीछे लड़ाई हो जाती है। तो आने वाला समय जो बड़ा गंभीर है, पानी का संकट बराबर रहेगा, और यदि हम समय रहते पानी को मैनेज कर पाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी। यदि अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत पहले का रिकॉर्ड है, पर भी मैं बता रहा हूँ 93 की पोजीशन है हमारी इंडिया में। इंडिया जो है 93 पोजीशन पर है, जो कि 1.56 थाउजेंड क्यूबिक मीटर पानी उसके पास है। और यदि सीवियर वाटर स्ट्रेस में देखें हमारी कंडीशन, वो 23 नंबर पर है। इजराइल नंबर 1 है जो कि वाटर स्ट्रेस है। पर यदि हमने मैनेजमेंट अच्छा किया तो ये सब आंकड़े बदल सकते हैं, और आने वाले समय में हम वाटर स्ट्रेस ना होकर हम वाटर अवेलेबिलिटी में भी अच्छा कर सकते हैं। यदि इंडिया की पोजीशन यदि ध्यान से आप देखें तो जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। हर जगह आप देखेंगे वाटर टेबल नीचे जा रहा है, पानी ग्राउंड वाटर जो है आपको नीचे की तरफ मिलता है, हर साल वो डिप्लीट कर रहा है। सरफेस वाटर पॉल्यूट हो रहा है, जो घरों से जो वेस्ट वाटर जा रहा है वो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में मिल रहा है, और रेनफॉल जो है वो उसका 70% वेस्ट हो रहा है। इसी के साथ यदि आप दूसरी कंडीशन देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, पानी का डिमांड भी उतना ज्यादा होगा, और पानी का कंजम्पशन भी उससे ज्यादा होगा। तो उससे पीछे कारण क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ रही है, इकोनॉमी इंडस्ट्री की वो भी बढ़ रही है, वाटर बिजनेस भी बढ़ रहा है, छोटी बॉटल से लेके बड़े बड़े टैंकर तक आज मार्केट में है। एग्रीकल्चर हमारा नीचे जा रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण एग्रीकल्चर लैंड खत्म होते जा रहा है। हमारी हेल्थ और एनवायरमेंट ये डिमिनिश हो रहा है, हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं है, एनवायरमेंट भी, हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है, और इन सब का प्रभाव यदि हम देखते हैं यदि जॉइंटली, तो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी वाटर रेनफॉल की अवेलेबिलिटी इंडिया में वो अनइवन है, और यदि अनइवन का मतलब जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लड्स आ जाते हैं, और जहाँ पानी नहीं गिरता वहाँ ड्रॉट हो जाता है। ऐसी कंडीशन हमारे देश में कई जगह पर है। ये महाराष्ट्र का केस है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गांव है गुजरात में, नटवरगढ़, जहाँ पर एक दिन संडे को लोग सिर्फ पानी पीने के लिए, घड़ा पानी पीने के लिए आए। 2003 का एक अच्छा सा चित्र है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे पानी की स्कैर्सिटी, पानी का तरह से एक गांव में होता है, और पानी के लिए कितने लोग एक बकेट पानी के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। ये चेन्नई की बात है कि पानी किस तरह से वहां के रिमोट एरियाज वाले लेते हैं। ये फ्लड्स की सिचुएशन है, ये सूखे की सिचुएशन है। तो हमारे पास चैलेंजेस क्या है? हम दूषित पानी पी रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हम पानी का इंतजार करते हैं, कई जगह ऐसी है जहाँ पर पानी नहीं मिलता, सूखा पड़ा रहता है। कहीं पर सीवेज का पानी आप देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर के रूप में ज्यादा मिलता है। महिलाएं कई कई किलोमीटर दूर जाती हैं 1-2 घड़े पानी लेने के लिए। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बिफोर अस। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेस्टिंग वाटर, वी आर पॉल्यूटिंग वाटर। वेस्टिंग मतलब हम अपने घर से ही वेस्ट वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, और वो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में जा रहा है, और उसके बाद में उसको पॉल्यूट कर रहा है। और यदि आप ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस को देखेंगे, कहीं जगह पर बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पर जगह पर कम हो रही है, तो ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। और कई 20 हमारे राज्य ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड और आर्सेनिक की प्रॉब्लम है। Approximately 40 million Indians, they are affected by waterborne diseases. 90% जो है पानी जो है वो हमारे नदियों में वो जून से नवंबर तक ही रहता है। बस सिर्फ 10% पानी जो होता है वो अनदर 6 मंथ होता है। मतलब हमारी नदियां जो है वो सूखी रहती है, वो एक्चुअली बरसात की नदियां हो गई।
जब आपका रेनफॉल आता है तभी वो नदी चलती है, अदरवाइज वो सब ड्राई हो जाती है। और हमारे 250 डिस्ट्रिक्ट जो से होते हैं वहां पर ड्रॉट डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। 45% इंडियन लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। 90% ऑफ दिस सीवेज generated by municipal council and over 50% of sewage discharged by municipal corporation goes untreated, क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं होता, वो अनट्रीटेड वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो हमारे पास क्या है, हमारी जो नदियां हैं दे हैव नो फ्लो ऑफ ड्यूरिंग समर सीजन। और उसके बाद में जो ग्राउंड वाटर जिसको मैंने बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसका यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। अब उसको हम पानी को रिचार्ज नहीं करते, हम उसको निकालते जा रहे हैं, और उसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। और इन सब कुछ चीजों को देखेंगे तो पॉल्यूशन जो है वो सरफेस और ग्राउंड वाटर का और भी बढ़ता जाएगा। इंडियन वुमेन जो है सबसे ज्यादा, आप समझ लीजिए कि एक एवरेज रूरल वुमेन जो है इट वॉक्स मोर देन 14,000 किलोमीटर ईयर जस्ट टू फेच द वाटर। मतलब 1-2 घड़े पानी के लिए हमारी महिलाएं जो है वो 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलती है। तो वुमेन्स दे आर गुड मैनेजर्स टू मैनेज वाटर रिसोर्सेस। तो ये जो ट्रेनिंग है उन लोगों को भी दी जानी चाहिए, जो पानी का मूल्य देखें, पानी बहुत प्रीशियस है, उसको बचा के रखें। वी हैव टू थिंक सीरियसली द वाटर सीवेज कनेक्शन। हम पानी को दूर से लाते हैं और उसके बाद में जो घर का खराब पानी था, वेस्ट वाटर होता है, हम दूर बाहर फेंक कर आते हैं। इन दोनों चीजों के अंदर हम करोड़ों रुपए खत्म कर रहे हैं। हम दूर दूर से पानी ला रहे हैं अपने शहर को पानी पिलाने के लिए, और हमारे यहाँ का जो वेस्ट वाटर है हम उसको दूर तक पहुंचा रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो चेन्नई में 235 किलोमीटर दूर से वीरम्बम लेक से पानी आता है, और अभी एक नया वीरम्बम एक्सटेंशन प्रोजेक्ट बन गया, वो 300 किलोमीटर की दूरी से आएगा। बेंगलुरु में कावेरी से 95 किलोमीटर, दिल्ली में टेरी डैम से 500 किलोमीटर दूर, हैदराबाद में मंजीरा डैम, नागार्जुन डैम 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर, मुंबई में वेत्राना तांसा डैम, भस्सा डैम 90 किलोमीटर, जोधपुर में इंदिरा गांधी कैनाल 204 किलोमीटर दूर से पानी, भोपाल इंदौर में नर्मदा नदी 90 किलोमीटर के आसपास। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी, पानी की डिमांड बढ़ी, और पानी की डिमांड बढ़ने के लिए हमने दूर से पानी लाया। पर जब तक आपके पास आसपास वाटर रिसोर्सेस है तब तो आप पानी ला सकते हैं, पर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, 2050 का यदि आप अपने विजन रखते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो पानी की लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 2050 के बाद पानी की स्थिति जो हमारे लिए बहुत गंभीर हो जाएगी, पानी का संकट ज्यादा गंभीर होगा। तो हमें चाहिए कि जितनी वाटर बॉडीज पुरानी है, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज जो अभी जिंदा है शहरों में, उनको रिवाइव किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। जितने तालाब है, पुराने कुएं हैं, बावड़ी है, उनको फिर से पुनर्जीवित करके उनके अंदर पानी लाने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम पानी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। हम घर में फ्लश करते हैं, फॉरगेट, वो पानी कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम, पर ये अल्टीमेटली पानी जो है वो दूर शहरों में जाकर इकट्ठा होता है, और जहां भी वाटर बॉडी होती है उसमें जाके चला जाता है। तो इस तरह से हम करोड़ों रुपया इस पानी को बाहर निकालने में लगाते हैं, जिससे अब उसके बाद में सीवेज प्लांट तो है नहीं, एसटीपीज तो है नहीं, ये पानी डायरेक्टली हम किसी वाटर बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं, वहां फेंक देते हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन का पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी नदियां जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूट हो रही है, और जो वाटर बॉडीज है वो भी पॉल्यूट हो रहे हैं। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट अभी गवर्नमेंट की एक नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012 की, जिसका ये कहना है कि वाटर लेजिस्लेशन हर स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो पानी की बात है वो हर राज्य में अपने अपने ढंग से होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बात बोली, उनका कहना है कि वाटर लेजिस्लेशन हर राज्य में हो कंपल्सरी, कोई भी ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं खुदे,
उसके बाद में जो गवर्नमेंट की मंशा है कि वो वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, हर आदमी को पानी मिले, नीचे तबके तक पानी मिले, और पानी का कंजर्वेशन वाटर बॉडीज का हो। उसके बाद में जो फ्लड और डॉट आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हो, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन बिल्कुल पुख्ता आधार में हो, वाटरशेड मैनेजमेंट की प्लानिंग जो है वो हर गांव कस्बे तक सीमित नहीं रहे, उसको अच्छी तरह से प्लान करके रखें। और इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे पानी के लिए तब तक हम पानी के मैनेजमेंट को सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। और कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम पानी को कम से कम वेस्ट करें, हम हो सके तो हम उसको रीयूज करें, उसके बाद में फिर हम उसको रिसाइकिल करें। हमको वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि अलग टॉपिक है कि किस तरह से पानी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के माध्यम से हम उसको उनका मैनेज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जो पानी है जो अपने घरों से निकलता है हम उसको रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि जो किचन का पानी है, जो आपके वॉश बेसिन से पानी जाता है, उसको यदि हम फिर से रीयूज करके हम वो फिर वापस छतों पे पहुंचा दें और उसको हम फिर उसको टॉयलेट में यूज करें पानी को, तो ये रीयूज की श्रेणी में आता है। और हम इस तरह से अरबों लीटर पानी हम एक रीयूज की श्रेणी में ला सकते हैं। उसके बाद में अल्टीमेटली जो ब्लैक वाटर जो निकलेगा, जो टॉयलेट से निकलेगा, उसकी हम रिसाइकलिंग करें, एसटीपीज, छोटे छोटे एसटीपीज बना के उस पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो रिटर्न फ्लो है इरिगेशन से, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी वगैरह बाहर निकल आती है, उसको रोकने की आवश्यकता है। इंटर बेसिन ट्रांसफर, अभी आपने देखा होगा केन वेतवा लिंक, ये जो बहुत सबसे फर्स्ट जो लिंकेज है दोनों नदियों का, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। और इस तरह से एक नदी को दूसरी नदी में जोड़ने की बात जो होती है, जो गवर्नमेंट की मंशा थी, वो अभी पूरी होती नजर आ रही है। केन नदी और बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्चुअल वाटर की बात है कि कितना पानी कपास को लगता है बड़े होने तक, और जब वो कपास आ जाता है तो उसके बाद उसके कपड़े जो बनते हैं उसमें कितना पानी लगता है, वो दैट इज कॉल्ड हिडन वाटर या वर्चुअल वाटर। वो ये सब चीजें यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम पानी के सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। हमको ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और उतने ही, मतलब पेड़ों के अंदर उतने ही पानी चाहिए जितना, यदि हमको 2 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए तो हम 2 ही लीटर पानी पिएंगे, हम 1 बाल्टी पानी तो नहीं पी सकते। तो अभी आपकी जो इरिगेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। 70% लोग जो होते हैं वो फ्लडिंग का काम करते हैं, माने पानी को स्प्रेड कर देते हैं खेतों में। पर हमको ड्रिप इरिगेशन को जोर देना चाहिए, ताकि जितना पानी की जरूरत है एग्रीकल्चर में उतना पानी मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि सरफेस वाटर यदि अच्छे होंगे, नदियां अच्छी होंगी, रिजर्वायर्स अच्छे होंगे, तो वो नीचे ग्राउंड वाटर को, उनका वाटर टेबल को ठीक करेंगे। और यदि आपने देखा होगा कि ज्यादा पानी का हम यूज करते हैं तो ज्यादा एनर्जी लगती है, और ज्यादा एनर्जी लगेगी, आप समझ लीजिए कि कितनी बिजली खर्च होती है। तो पानी को कम से कम यूज करें ताकि हमारी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। और जो ग्राउंड वाटर है, इट शुड बी रिचार्ज कंसिस्टेंटली। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वाटर कंजर्वेशन के, इट शुड बी रिवाइव्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, चाहे वो तालाब हो, पुराने कुएं हैं या बावड़ी हो, हर शहरों में बावड़ी मिलेंगी आपको। वो बावड़ी आजकल डंपिंग यार्ड बन गई। उन बावड़ी को यदि हम फिर से रिवाइव करेंगे तो हम पानी को अच्छी तरह से बचाने का काम अपने शहर में कर सकते हैं। और जितनी नदियां हैं, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसको साफ रखने की बात है, और उसको इंक्रोचमेंट से दूर रखने की बात है। यदि हमने ये इसको पूरा कर लिया तो जो नदियां हमारी होंगी, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, सहायक नदी होंगी, वो यदि बिल्कुल स्वच्छ हो गई, वो बिना इंक्रोचमेंट की हो गई और साल भर बहने लगी, तो आप समझिए कि
हम 2050 में यदि 160 करोड़ हो भी जाए तब भी पानी की दिक्कत नहीं आएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट शुड बी मैंडेटरी इन अर्बन एरियाज। ये जरूरी है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करें, पर इसके लिए एक हाइड्रोजियोलॉजी या हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होनी चाहिए जो आपको बताए कि किस जगह पर पानी बचाया जा सकता है, किस जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। और हर राज्य में एक स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड होना चाहिए। अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसी प्रकार का एक स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड भी आना चाहिए। तो जैसे हमने अभी बताया था कन्वेंशनल मेथड्स जो होते हैं ना, बाउडीज, जोड्स, पोन्स, टांकास, इनको रिवाइव करने की आवश्यकता है। क्रॉपिंग पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। एक ही फसल हम नहीं उगाए, हम 1-2 साल के बाद में फसल बदल दें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है एग्रीकल्चर करने के लिए कि हम क्रॉपिंग पैटर्न को बदलें। उसके बाद में हम पब्लिक पार्टनरशिप को ज्यादा जोड़ दें। उसके बाद में हम ट्रेन करें लोगों को जो कि इस कार्य से जुड़े हुए हैं। इसमें महिलाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक अच्छी वाटर मैनेजर बन सकती है। जो म्युनिसिपल पाइप्स में जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करने की आवश्यकता है और इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन एरियाज में होनी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन मेजर्स एग्रीकल्चर में जो कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। और पहाड़ों पर जो बिल्कुल नंगे पर्वत होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, उनको यदि हम फिर से उसको बसाना चाहते हैं, उसके अंदर हम नाला प्लग्स हिल स्लोप में बना सकते हैं सॉइल मॉइस्चर में, और इसके साथ हम उस पूरी की पूरी पहाड़ी को हरा भरा भी कर सकते हैं। तो यदि वो हरी भरी हो जाएंगी तो आप समझ लीजिए कि ग्राउंड वाटर भी रिच होगा। तो सेव वाटर कैंपेन बहुत सारे हैं। इसमें हम सॉइल मैनेजमेंट की बात करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम जो डैम्स और कैनाल्स में लीकेजेस की बात है उसको भी दुरुस्त करने की बात करते हैं, और ट्रीटिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ म्यूनिसिपल वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें यदि हम कर लेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सरकारी करे, ये हम अपने तरफ से भी इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थोड़े से उदाहरण है। ये आपके चेक डैम है, ये सब सरफेस डैम है जो बनाए जा सकते हैं। ये एक फॉर्म पोन्स है। ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका कैसे छत पर से पूरा पानी इकट्ठा करें। तो जितनी बड़ी छत होगी स्क्वायर मीटर में और जितना रेनफॉल होगा उतना ही वॉल्यूम पानी आप रिसीव कर सकते हैं, उतना ही पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि किसी छत पर से कितना पानी आपको मिलेगा। तो एरिया ऑफ कैचमेंट स्क्वायर मीटर इनटू अमाउंट ऑफ रेनफॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव्ड, क्यूबिक मीटर में जितना पानी आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में ग्राउंड वाटर रिचार्ज अर्बन एरियाज में करने की आवश्यकता है। मैं अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा कि एक वर्चुअल वाटर जो है, वर्चुअल वाटर का मतलब कितना पानी लगता है ग्लोबली। यदि हम देखें कितना पानी लगता है एक किलो राइस के लिए, तो 1 किलो राइस के लिए आप मान के चलिए कि 2173 लीटर पानी चाहिए। और इसके लिए यदि आप देखेंगे आउट ऑफ दिस 1488 लीटर पानी जो है, इसमें 443 लीटर पानी जो सरफेस और ग्राउंड वाटर का होगा, और बाकी जो है वो अदर सोर्सेस का है। तो दिस वाटर इज कॉल्ड वर्चुअल वाटर। और वर्चुअल वाटर को यदि आप ध्यान से देखेंगे कि हम अपनी कंट्री से इतना पानी बाहर भेजते हैं, मतलब 10 ट्रिलियन लीटर पानी हमारी कंट्री से बाहर जाता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा चावल को एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें यदि आप इसको ये फिगर्स को देखेंगे कि कितना मिल्क, कितनी स्लाइस, आप ऐसे इसको हैव ए लुक ऑफ दिस कि कितना कितना पानी एक एक चीज में लगता है, कितनी राइस में, कितना पेपर में, कितना शुगर में। तो अल्टीमेटली इतना पानी जो है वो हिडन वाटर है, और ये हिडन वाटर में हम नंबर 1 है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और आने वाले समय में यदि हमने ऐसे ही रवैया अपनाया तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा पूरा पानी खत्म हो जाएगा। चाइना जो है वो इंपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट नहीं करता, तो उसके पास कभी कमी नहीं आएगी।
तो हमें ट्री प्लांटेशन सबसे ज्यादा जरूरी सॉल्यूशंस में भी हम देखें। हमको रीयूज और रिसाइकिल करना है वेस्ट वाटर को, हमको पानी को कंजर्व करना है आर्टिफिशियल रिचार्ज के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस करते रहना है। तो उससे क्या होगा कि हम अपने पानी का मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको शुद्ध पानी चाहिए सभी के लिए। सी वाटर सैनिटाइजेशन, यदि कहीं पानी नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली हमको कोस्टल रीजन्स में डिसैलिनेशन के कारण पानी हमको देना पड़ेगा। चेन्नई का उसका अच्छा उदाहरण है। एसटीपीज को लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम बिना एसटीपी के हम पानी को रिसाइकिल नहीं कर सकते। और पानी को हमको यदि बचाना है, उसको पॉल्यूट होने से बचाना है, वाटर बॉडीज को बचाना है, तो हमको एसटीपीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जितने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं पानी के, उनको भी आपको रिवाइवल करने की आवश्यकता है। तो ये से मैंने अभी आपको बताया कि एक मिंजूर में, एक 35 किलोमीटर मिंजूर जो है ना चेन्नई से, वहां पर इस तरह का एक प्लांट लगा है। सबसे महंगा होता है प्लांट, जब एक बार जब लगता है तो इट्स वेरी कॉस्टली, पर उसके बाद जब अल्टीमेटली वो बन जाता है तो वो 6 पैसे प्रति लीटर पानी मिलता है। तो ये चेन्नई के अंदर ही 2 प्लांट लग चुके हैं, तीसरा प्लांट अभी और प्रोग्रेस में है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मतलब NIOT की तरफ से लगा है, और आने वाले समय में और भी कोस्टल एरियाज में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए इस तरह का सॉल्यूशन आएगा। हम लो फ्लश टॉयलेट यूज करते हैं, आपने बाजार मार्केट में देखे होंगे 2 तरह के टॉयलेट होते हैं, सिंगल फ्लश मॉडल और डबल फ्लश मॉडल। उसमें पानी की बचत हो सकती है, 6 लीटर पानी एक उसमें बचेगा, तो आप समझ लीजिए करोड़ों लीटर पानी हम इस तरह से लो फ्लश टॉयलेट में बचा सकते हैं। हम लीकेजेस को रोकने के लिए जो ड्रिपिंग टैप है उसको बचा सकते हैं, कम से कम 15 लीटर पानी एक दिन में हम बचा सकते हैं। और यदि हम देखें तो 5500 लीटर पानी पूरा का पूरे साल में बचा सकते हैं। कई कई सेंसर बेस्ड स्टॉप वॉल्व्स आपने देखे होंगे, जब एयरपोर्ट में या मॉल्स में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप खड़े होते हैं तो आपको वो पानी चलता हुआ है, और जैसे आप वहां से उतरते हैं पानी बंद हो जाता है। तो ऐसे सेंसर बेस्ड स्टॉप वॉल्व्स जो आजकल बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ में आ गए हैं, इसका विस्तार प्रसार ज्यादा होना चाहिए, और इससे हम कई लीटर पानी बचा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन को ज्यादा जोर देना है। ये एक फेरो सीमेंट प्लांट है, उन जगहों पर जहां पर पानी की समस्या है उसको जगह लो कॉस्ट इफेक्ट है, जिसको हम पानी को नीचे जाके लगा सकते हैं, पूरा सीमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर पूरा पानी, बरसात का पानी उसके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। एक बेम्बू इरिगेशन है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर आज भी लोग खेती करते हैं। बेम्बू इरिगेशन के नाम से आपने जाना होगा कि खासी और जल्टिया ट्राइब्स जो है वहां पर पेपर बैटल, ये जो पान की खेती होती है वहां पर इसका यूज करते हैं। एक कोस्टल रीजन्स में ये वाटर सीरीज के नाम से होता है कि जहाँ पर कोस्टल रीजन में फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर, उस दोनों को के बीच में यदि सामंजस्य बनाना है तो ये इस तरह की वाटर सीरीज वहां पर यूज की जाती है। अब इसमें मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अभी राजेंद्र सिंह साहब है जिन्होंने, आपने देखा जोहड़ राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है। वो जो पुरानी पुरानी नदियां थी उनको सबको इकट्ठा करके उसको वाटर बॉडीज को फिर से रिवाइव किया, और कई नदियों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। तो कई नदियों को पुनर्जीवित करके आप पानी और सरफेस वाटर को इनरिच कर सकते हैं। जिससे मैंने आपको बताया था कई ऐसे जालराज स्टेप वेल्स होते हैं। स्टेप वेल का मतलब होता है कि बावड़ी, ये बावड़ी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी का पानी हो सकता है, तो वो बावड़ी को यदि आप फिर से रिवाइव करेंगे तो कई किलोमीटर, कई लीटर पानी आप बचा सकते हैं। तो सॉल्यूशन आपने इतने देखे, इसका मतलब ये हुआ कि हमको हर ड्रॉप को बचाना है। वी हैव टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। इट इज बाय मोटिवेशन, बाय ग्रुप डिस्कशन, बाय प्रमोशन, बाय इंकरेजमेंट एंड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस होना चाहिए हर आदमी के पास, ये होना चाहिए कि पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज के बच्चों को दी जाए, लेक्चर डेमो के अंदर जाए, नुक्कड़ प्ले हम करें, वर्कशॉप सेमिनार्स करें, जैसे अभी हम कर रहे हैं।
मीडिया का रोल सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग अखबार को पढ़ते हैं। वहां पर यदि हम इस तरह की बातें उसमें छपवाते हैं या छापते हैं, आर्टिकल यदि छपते हैं, तो कई लोग उसको पढ़ के पानी की जो महत्वता है उस पर अपना ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे और उसके बाद में लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे। पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और जो पानी जो वर्कर्स हैं जो पानी में एंगेज है, मतलब ट्रेनिंग टू वर्कर्स एंगेज इन वाटर सेक्टर, उनको ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट देनी है। अभी हमारी कंट्री में जल शक्ति एक ऐसा डिपार्टमेंट बना है, नया डिपार्टमेंट, जिसमें नल जल शक्ति अभियान, जो कि 256 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सूखा है उसके अंदर पानी भेजने की योजना है। जल जीवन मिशन, जिसमें 146 मिलियन रूरल हाउस होल्ड से उनको पानी देने की बात है। और अटल भूजल योजना, ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की कम्युनिटी के थ्रू, ये पार्टिसिपेशन के थ्रू ये काम, मतलब 3 ये इंपॉर्टेंट अभियान है, जल शक्ति, जल जीवन और अटल भूजल। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, पर हमारी भी ड्यूटी थोड़ी बहुत बनती है कि हम पानी को बचाएं और पानी की महत्वता को समझें। ये नेशनल वाटर मिशन का है कि कैच द रेन, हर बूंद को बचाना है, जहां भी वो गिरती है उसको बचाने की कोशिश करें। और आज के दिन हम एक जल शपथ लें कि हम पानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटा सा उदाहरण आप अपने शहर में कर सकते हैं, आप अपने परिवार में कर सकते हैं कि यदि हम रोज 10 लीटर भी पानी बचाने की कोशिश करें अपने दैनिक उपयोग में, तो हम भोपाल की उदाहरण लें, हम 40 लाख लीटर पानी हम डेली बचा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी डे पर या और किसी मेमोरियल डे पर हम एक प्लांट को लगाएं या उसके बाद उसको मेंटेन करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पेड़ आपसे ऊंचे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी पृथ्वी को और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। स्टॉप लीकेजेस, जितने स्टॉप लीक आपके घर में हो या मोहल्लों में कहीं भी हो, गवर्नमेंट अपने स्तर पे करेगी, पर आप अपने स्तर पे आप कर सकते हैं। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने कॉमन मैन को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और जितना हो सके मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग करिए। लोग 3 आर की बात करते हैं, मैं 5 आर की बात करता हूँ कि रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रीयूज द वाटर, रिसाइकिल द वाटर, एंड 2 more are rejuvenate the water bodies and respect to water bodies. By saving all these, we save our water, save our world. So this is all about my lecture. Thank you very much for calling me. और एडवर्स कंडीशन में भी मैं आपके साथ रहा और मेरे ख्याल से मैं खरा उतरा हूँगा लोगों को अवेयर करने में। Thank you very much. Yes, sir. Sir, one of the participants asked how to conserve water in area like Indian Kashmir, where there are no deans of conservation of water. हाँ, बहुत सारी टेक्निक है। जहाँ पर बर्फ गिरती है ना, Yes, वहाँ sir. पर कई तरह के, मतलब वो अब जो आपको मैंने बताया ना ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है, तो उसको क्या करते हैं कि वो पूरे बर्फ को इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं और उसके बाद में जैसे वो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो वो बर्फ पिघलती है, उसको डाइवर्ट करते हैं। ये लेह और लद्दाख के अंदर ये वाली पद्धति ज्यादातर यूज होती है। Okay, okay, sir. वो एक अलग टॉपिक है कि मैं पूरा ट्रेडिशनल मेथड्स बताऊं आपका, बहुत बड़ा एक है ट्रेडिशनल मेथड। पूरे इंडिया के अंदर कई ट्रेडिशनल मेथड यूज होते हैं। Dr. Vinod Parashar, aware all of us about the national water policy, about the water sewage connection and purification of water with least use of water. He said that around 40 liter water is being used in COVID period. Water rainfall is uneven. So water could be the main reason for being of the Third World War.
With this, we pledge we will save water, even drop of water. We thank you for giving your valuable time and stimulating speech, sir. Now, I would like to request our Dean of Science, Dr. Neetu Paliwal, for the vote of thanks. Thank you, Bhavna Madam. The day is aimed at raising awareness about 2.2 billion people living without access to safe water resource globally. Water is life, matter and matrix. Mother and medium, there is no life without water by Albert Sisson. I, Dr. Neetu Paliwal, Dean Faculty of Science, a very hearty vote of thanks to today's keynote speaker, Dr. Vimal Kumar Parasa sir, Professor MBM College, Bhopal, for sharing their inspiring word and wonderful talk for safe water and importance and water conservation. Further, I would like to thank Prabal Rai sir, Director Center of Science Communication, for conducting this excellent webinar. Further, I would like to thank all deans, HOD, center heads, and students for attending this e-webinar. Thank you all. अगर बूंद बूंद से सागर बन सकता है तो खत्म भी हो सकता है. प्लीज पानी को बचाइए. और सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद भी सर ने बहुत अच्छे से हमको सारी बातें समझाई हैं. सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. मुझे दूसरे में एक और लेक्चर है सर, वो जो भी पीरियड है ऑक्यूपाइड है. समझ रहा हूँ, बट फिर भी आपने इतना इंफॉर्मेशंस, इतने मतलब स्टोरीज और इतने हमें एनर्जाइज किया है, तो मुझे लगता है कि जितना भी श्रोता और ऑडियंस रहा, कुछ ना कुछ हो, घर में हो या अपना मोहल्ला में, कुछ ना कुछ इसका बारे में करेंगे सर. करेंगे. आज सर संकल्प तो सभी लोग लेंगे. जी. वाटर हार्वेस्टिंग का मैं भी लूंगी कि मतलब मैं अपने घर में भी वो सिस्टम लगवाऊं. बिल्कुल सर. सभी लोगों से उम्मीद है सर, सभी लोग इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. थैंक यू.